कहाँ है वो ट्रेनिंग रूम वाले? ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ जी, रिकॉर्डिंग ये चीज नहीं लगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारी आवाज बिल्कुल सही आ रही होगी एंड यू विल बी एबल टू hear us clearly. If anyone has any issue in connectivity, though he or she can raise his or her hand accordingly. First of all, would like to welcome all our dear shareholders, investors, and analysts in the corporate briefing session for the year ended 31st December 2025 under the 5.7A of PSX Rulebook, Pakistan Stock Exchange Rulebook 5.7A के अंदर, as required every listed company to hold a corporate briefing session. We are conducting our corporate briefing session for the year ended 31st December 2025. As each company is required to hold a corporate briefing session within 30 days of the conclusion of the annual general meeting. So this is also in line or in compliance with the Pakistan Stock Exchange regulations. This has been quoted at the start of the meeting as the recording of this corporate briefing session will be accordingly uploaded on the website of the company, official website of the company, and subsequently the link to that official video uploaded on the website of the company will be provided to the general public for their dissemination through the POCARS designated portal of Pakistan Stock Exchange. First of all, before proceeding with the presentation on the financial year for the ended 31st December 2025, we would like to state that as required under the Pakistan Stock Exchange Rule Book, the requisite presence of CEO and CFO as are both are compulsory in every corporate briefing session, other than the corporate briefing session which are required to be held for the year during the year. Our CEO Hello? and our CFO Chief Officer Mr. Jalal Meghani हाँ Sahab कर दिए, कनेक्ट कर दिए। corporate briefing session as required under वीडियो 5.7.2 बंद है। and 5.7A.3. So further करूँगा लेकिन फिर ये तो सामने ही आएगा, नहीं इनका तो नहीं आएगा, यहाँ कैमरा नहीं है सामने। Further proceeding through this corporate briefing session, I would request our CFO Chief Financial Officer Jalal Meghani Sahab for the presentation of, on the financial year concluded 31st December 2025. Jalal Sahab, आप को मैं प्लीज इसमें रिक्वेस्ट करूंगा प्रेजेंटेशन की। jalal साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। Can you hear me now? जी जी बिल्कुल। Thank you for all the participants and thank you Arsalan for this corporate briefing, arranging this corporate briefing session. I understand we have participants from the training room at our corporate office, Karachi, and I can see a couple of participants here. I also understand there's some overseas participant. So welcome to this session. And we'll start with the presentation, which been circulated on the POCARS website, POCARS portal rather. I just hold on, कहाँ पे ये share करना? Okay. Can you see the screen? Aslam? जी सर बिल्कुल। Okay. So let's start. I'll draw attention of the participants to our annual report, which was issued in March, and towards the director's review, where some of the numbers are comprehensively explained. And I'll on and off refer director's review report for that purpose. But before starting,
there is no major change in our strategic objectives, and it's still our long-term objectives are more or less similar to what have been presented last year. And that is and the increasing our market share in the direct distribution model, which was started in late 2018. And though our banker distribution is very much matured and we are the top premium generator in the bank assurance distribution channel. To attend the profitability and increase market share is our prime long-term objective. And there has been a consistent progress towards this objective. And we'll see further progress in the years to come, leading to the profitability against this distribution model. Likewise, on the digital space is also presence on the digital space is also very important, as we all know. And in that respect, even SECP has directed insurance companies to at least put four of the products. And those four products are the agreed products. The structure of the products are agreed, which are the saving products, both in the single premium and regular premium, which will now be available on the digital space on our recently launched app of the company and with the aggregators on the website, so on and so forth. And we will continue to add further products on the digital space as the time goes. Along with that, we are seeking partnerships with other service provider to embed our insurance product. The bringing innovation and a long-term value for the customer is also one of our strategic objective, and in that respect, we have recently launched endowment product, the Guaranteed Sum Assured product, a month back. We know that primarily all the insurance companies are selling a unit-linked, investment-linked product. And from the last year, the industry players have started introducing endowment product, the non-unit-linked product segment into their product basket. And we have already done that last year. The general objective to increase product awareness, because the penetration, in our country is still less than 1% of the GDP in the life insurance. So creating product awareness and the value proposition for the life insurance is one of the most important thing which each and every player in the industry should do. The quality of excellence and the quality of sales is also important to enhance trust level in the life insurance company. We saw in the past that there was a kind of trust deficit in all the insurance product, but achieving the excellence in quality of service, which now all the industry players are doing in different ways. And a new line of business, especially exploring the retail health. It's in a very initial stage of study, but we'll see how we can enter into the retail health insurance as well. On the overall distribution landscape in 2025, in bank assurance is still our major driver of the revenue, with 82% of the new business been generated from the banker partners. We have employed around 877 sales representative in the different branches of the bank, and the market share of Adamji Life in the total banker industry is around 22%, which has increased from 20% in the last year. And our major partners include MCB Bank, MCB Islamic, Habib Metropolitan, HMB in both conventional and Islamic window. In direct distribution, minus State Life, which is the major player in the direct distribution, having around more than 55% of the market share.
The minus state life in the private sector, our market share is 10%, and we have around 67 sales offices, and 18% of the new business is generated from the direct distribution, and we have around 2,300 direct sales force employed into these branches. Our number of on the group life side, we have seen gradual growth in an increase in the market share of RMG Life, and the number of corporate accounts as at end of year 2025 was 278, and the gross premium under return was 1.4 billion, and the claim ratio was 83.55 with net of RI claim ratio of 54.53. And RMG Life, again, minus state life, the private sector market share is 7%. This is the 6 years snapshot of the major balance sheet items. And you can see that we are very, very adequately capitalized. And we have the highest paid-up capital in the industry. In 24 to 25, the increase is due to the 5% issuance of the bonus share. And our reserves has increased from 1.8 billion to 2.15 billion, which is parked in the statutory fund, but distributable in the future. Whereas the distributable unappropriated profit in the equity side is 1.5 billion, increased from 1 billion in last year. Our total investments has risen from it's a growth of 20%. We can see from 105.7 to 123.4 billion in 2025. Other than that, our total assets are 134.5 from 116.4. And in the year 2025, our credit rating was also improved from A++ to AA from PACRA with a stable outlook. And this is the P&L side of the financial snapshot. And you can see the top line of from 30.9 to 36.13, which is billion, which is an 18% growth in the top line from the last year. Going into the breakdown, which is not given here, is the premium generated from new long-term business. The regular premium new business is 4 billion in this 36.4, and that 4 billion represents 43% growth over last year. And the major growth has come from our major banker partner, MCB Bank, and they have generated 65% more business, new business as compared to the last year. Overall, banker distribution has seen a growth of 58% in 2025, whereas our direct distribution was more or less same as the last year. So there was no decrease, no increase, as we are going through some adjustment to ensure quality of business first rather than the uncalculated growth side. On the group life side, our business was 1.4 billion, as mentioned on this last slide, which is 43% up from the last year. Our renewal business, the policies which were underwritten in the past years and for which we have received renewal premium for the second, third, and onward years, has increased by 1%, and the total amount in this 36 billion was 10.1 billion for the renewal book. The major contributor in this 36.4 billion is again our single premium product, which is 21 billion in 2025, and which represents 22% growth from the last year. So this is the one-shot single premium high ticket items, and normally it carries a maturity for 2 to 3 years.
So that's the breakdown for the total gross premium. You can see the investment income has declined by 21% from 26.7 to 21. And the major reason was the stabilization of the interest rates in the economy due to decreased inflation rate and stability in the macroeconomic indicators. The policy rate was declined from around 21% going down to 12 at the end of during the year, on average 12, and as of December it was around 10.5 if I'm not wrong. So there was a drastic decrease in the interest rates, and around 80% of our portfolio is invested in government securities and interest-based investments. So what we see here is a partial decline, because that decrease in interest rate was compensated by a very robust increase in the equity markets. So there are equity gains which compensated the lesser income in the interest-based securities. So on overall, minus 21% is the investment income for the company, and this includes both investment income tied up to the investment-linked products for the policyholders and for our own portion of the equity and the residual surplus in the policyholder funds. The net claims likewise increased from 24.3 to, sorry, from 24.3 to 32.086 billion. And the major attributable was the maturities of around 11.7 billion, which is 27% more than the last year. And we are in our 14th or 15th year of operations as far as individual life is concerned. So policies are maturing fast. Likewise, the new policies are also coming in. But in total claims, you can see 27% increase in the maturities, whereas 36% increase in the surrenders since in the last year. The cash value improved a lot due to the interest rates and the interest rates in 2024, 2023. And due to that increase in interest rate, the cash value in 2025 against the policyholders' portfolio increased tremendously, and people preferred to cash in their cash value. So you can see more surrenders coming in over here in the net claim side. The pure death claims are around 1.8 billion, which is 43% higher than the last year. So this is the major line item on our expense side. Acquisition cost is very much variable, and there is no deviation as far as the percentage of acquisition cost to premium is concerned. Likewise, the technical reserves is also is more or less in line with the historical trend. It has decreased from 25 to 16.7 because of all these surrenders, maturities going out, and the decrease in the interest rate, and therefore the technical reserves are lesser as compared to the last year. So from underwriting point of view, the minus the operating expense and financial charges, our underwriting results produced 3.7 billion of profit as against 3.9 last year. And as I said, the reason is the decrease in the investment income and the major portion of in the top line of the single premium. And single premium in the first year carries some upfront cost, which pays off in the later year. But in the first year, there is a high acquisition, the cost is high, and then the gross premium, and therefore you can see a slight decline in the underwriting results. Operating expense of 1.5 billion is very much within our budgetary limits. And you can see it's a hardly an increase of around 9%, considering the going inflation rate. We were satisfied with the way we have controlled our expenditure. And therefore, the profit before tax has decreased from 2.5 to
2.1 billion. And that also includes lesser investment income on the shareholder equity investment as well. So combined underwriting results, the operating expense, and certain decrease in the investment income on the shareholder equity portion, you can see around 400 million decline in the profit before tax. The earning per share, likewise, is 5.01 as against 6.22. And the important thing is that we maintained a very good payout ratio, the dividend payout ratio, and historically we paid 20%, 10% interim, and 10% final. But this year, our board of directors decided to pay a final dividend of 15%, making 25% in total for the year 2025, in addition to the 5% bonus share issued in the interim. The share price analysis for a few years, and we can see here that our free float has increased from 9% to 15%. So in the year 2025, our parent company has reduced their shareholding according to the PSX requirement from 90% to around 85% holding, and therefore 15% is available in the free float. Some analysis on the share price you can see, and market price to breakup value is 1.53 in market capitalization of around 8.2 billion. And here you can see our asset under management, which is shown a very good growth rate from, if you see, from 2020, from 49 billion to now 131 billion in 2025. In addition to that, if you see on the annual report, there is a major issue facing the entire industry is the provincial sales tax, and that provincial sales tax is still, is prejudice, and on the province of Sindh, it's been recently sent back by the Supreme Court to Sindh High Court to review the question of law, whether the life insurance is a service or not, or whether the provincial jurisdiction is appropriate to levy that tax. And the Lahore High Court from the Punjab side, which is our major market, we have a stay for any coercive action from the Lahore High Court for the Punjab Revenue Authority, unless the question of law is decided by the Lahore High Court. So that is the industry-wide contingency, and our exposure into that sales tax is around 1.6 billion, which though is a retrospective exposure, but we are very hopeful that any decision which would come in the future would apply sales tax in any manner. If the question of law is decided, then it would be progressive rather than retrospective. So, but for the sake of disclosure, all the industry players have disclosed their exposure on the retrospective basis. So that's all from my side. If there are any questions from the participants, I'd be pleased to answer that. Thank you, Jalal sir. Thank you. Thank you so much for the briefing. Now we would like to proceed under 5.7 A.3 clause D, which requires every company to hold a session for the question and answering of the participant, either physically or participating either physically. First of all, we have a question in a chat. Jalal sir, Hello. Hello. Yes. सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है.
हेलो। सर मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। हेलो। जी जी, सुन रहे हेलो। हैं। जी जी, यस यस। सर मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। और जी जो है क्या कहते हैं, मेरा एक सवाल है कि यहाँ जो है कनेक्टिविटी का कुछ इशू था। मैं आपके आदम जी हाउस में हूँ, कराची में। हेलो। जी जी जी। तो यहाँ कनेक्टिविटी का कुछ इशू था, तो जो है 10 मिनट मैंने क्या लेट अटेंड किया। मतलब मैं तो यहाँ 10:30 से आ गया हूँ, मगर यहाँ कुछ इशू था ना। ओके। हेलो। जी जी जी, फैसल साहब। हेलो। जी सर ये 6 ईयर रिव्यू टू का आप थोड़ा स्लाइड थोड़ा सा जो दिखाएंगे। तो जी मैं आपको एक सवाल पूछना चाह रहा था, छोटा सा सवाल है। सर 6 ईयर फाइनेंशियल, ये सर बिल्कुल, ये जी, पूछिए। हाँ। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं ये सवाल है मेरा कि जो है क्या कहते हैं, आपका सर ये नेट क्लेम्स 2020 से, यानी कि ये 6 ईयर रिव्यू है, ये 2020 से सर ये बढ़ते 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 ये लाखों रुपए में था। अब ये पिछले साल 24 करोड़ था, अब 32 करोड़ हो गया। तो सर ये जो है आपका जो क्लेम्स हैं इसके अंदर बढ़ोतरी नजर आ रही है। तो और जबकि हमारी जो कंपनी है वो लाइफ इंश्योरेंस करती है। हेलो। जी जी। तो अगर यही सवाल अगर हम जनरल में पूछते तो शायद हो सकता था कि जवाब ये मिलता कि कोई एक बड़ा फायर हो गया था, या एक बड़ा जो है क्या कहते हैं, कोई जो है डैमेज आ गया में। तो सर आप तो लोगों की जो है क्या कहते हैं लाइफ को इंश्योर करते हैं ना। तो सर आप इसको किस तरह जो है क्या कहते हैं एक्सप्लेन करेंगे कि इन जो है क्या कहते हैं 3-4 सालों में कोई वायरस कोरोना टाइप का या कोई ऐसा नहीं हुआ, या खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा अमवात नहीं हुई। तो ये आपका जो जो नेट क्लेम्स है वो बढ़ क्यों रहा है? पिछले साल 24 करोड़ था, इस दफ़ा स्लाइटली ये ऊपर चला गया 32 करोड़। तो ये सर इसको थोड़ा सा जो है ना आप थोड़ा सा रोशनी डालें ना। जी, फैसल साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी जी। अच्छा, ये आ, लाखों नहीं था ये। पहले भी 6.8 बिलियन था, अगर 20 में देखें। और अब ये 24 लास्ट ईयर था, और 32 हो गया, और इससे पहले 19 था। 68 लाख अच्छा। था ना सर 2020 में। सर 68 लाख ही था ना सर। लाख ही कहेंगे ना, 68 लाख को तो 68 लाख ही कहेंगे, इसको करोड़ तो नहीं नहीं कहेंगे। ये नहीं, ये फिगर जो है ना, ये मिलियन में है। ये इसके आगे आपको 6 सिफर और लगाने हैं। तो बहरहाल, आप चाहे चले, इंक्रीज तो है ना, सवाल आपका ये है कि ये इंक्रीज इतना क्यों है। तो मैंने बताया था कि ये जो क्लेम्स हैं, ये सिर्फ डेथ क्लेम्स नहीं है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो अकाउंटिंग रेगुलेशंस हैं, उसमें हमें सारी चीज़ें क्लेम्स, क्यों जो भी पॉलिसी होल्डर मांगेगा, चाहे वो अपनी मिच्योरिटी मांगे कि मेरे 15 साल पूरे हो गए, मेरी पॉलिसी का जो कैश वैल्यू है वो वापस दे दें, 10 साल हो गए, तो वो भी क्लेम्स में आएगा। मिच्योरिटी जो भी पॉलिसी होल्डर को आप पे करेंगे, अगर कोई पॉलिसी होल्डर कहता है कि मैंने अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना है, मैं 15 साल की मेरी पॉलिसी थी, वो 8वें या 7वें साल पे आके कहता है कि मुझे पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करनी, तो वो सरेंडर करवाता है, तो वो सरेंडर भी क्लेम कहलाता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, इसमें मेजॉरिटी जो है ना, वो मिच्योरिटी है। मेच्योरिटी तकरीबन 32 में से 12 अरब, 12 बिलियन जो है वो मेच्योरिटी है। और मेच्योरिटी इसलिए बढ़ गई है कि जैसे जैसे आप पुराने होते हैं, आप अपना इंडिविजुअल लाइफ का बिजनेस करते हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पे जो टर्म लिखा जाता है वो 10 साल या 15 साल का होता है। 20 साल की पॉलिसी कम लोग लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दी पॉलिसी होल्डर हैं वो 10 साल पे होते हैं। तो ये अब हमारी मिच्योरिटी करीब आने लगी, बल्कि मिच्योर्ड बहुत ज़्यादा होने लगी पॉलिसी, क्योंकि हम 2012 से ये काम कर रहे हैं। फिर 12 से 22 तक फिर काम बढ़ता गया। अब ये जो आप 25 में ये मैच्योरिटी देख रहे हैं, ये सारा वो बिजनेस है जो हमने 14-15 में लिखा होगा, नया बिजनेस।
तो वो ग्रोथ के साथ लिखा होगा। 5वां साल हो गया होगा हमें ऑपरेट करते हुए, उसके बाद ये आज 10 साल के बाद मेच्योर हो रही हैं। तो ये मेच्योरिटीज हो रही है ना, ये उसका पोर्शन है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पिछले 2 साल में कैश वैल्यूज बड़ी इंप्रूव हुई पॉलिसी होल्डर की। इंटरेस्ट रेट्स भी हाई थे, आपको पता है 23-24 तक पहुंच गए थे। फिर वो इंटरेस्ट रेट कम हुए तो इक्विटी मार्केट चलना शुरू हो गई, तो लोगों की कैश वैल्यूज इंप्रूव हो गई। तो जो मेच्योरिटी से पहले उन्होंने ये समझा कि हम अब इसी को कैश कर लें, हमारे 2-4 साल बचे हैं तो अब हम इसको कैश करवा लेते हैं पॉलिसीज़ को, तो वो सरेंडर कर गए। तो वो सरेंडर का भी बहुत बड़ा पोर्शन है। ठीक है, इसमें सिंगल प्रीमियम की जो हमारा बिजनेस है सबसे बड़ा, वो सिंगल प्रीमियम की भी मेच्योरिटी जो होती है वो छोटी होती है, 2-3 साल की। तो सिंगल प्रीमियम जो हमने 23 में लिखा था वो अब 22 में लिखा था, वो 25 में आके मेच्योर्ड हुआ। तो ये सारा वो फैक्टर है। अगर आप पूछेंगे कि अमवात कितनी हुई, डेथ क्लेम्स कितने दिए, जो आपका सवाल है, तो वो तकरीबन 1.8 बिलियन है। ये 32 में से हार्डली कोई 1.8 जो है वो डेथ क्लेम्स हैं। ठीक है, और ये डेथ क्लेम्स भी आपकी जितनी पिछले साल पॉलिसीज ऑन बोर्ड थी, हर साल बढ़ती रहती है पॉलिसीज ऑन बोर्ड, तो ये डेथ क्लेम्स भी बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप ये डेथ क्लेम्स का मुवाजना करेंगे कि हमने डेथ क्लेम्स के अगेंस्ट जो उनसे इंश्योरेंस चार्ज लिया है, जो रिस्क चार्ज लिया है, उसका कितना पोर्शन हमने डेथ क्लेम में दिया, तो वो हार्डली 50 या 52% है। तो जैसे आपको नज़र आता है जनरल में क्लेम रेशो ज़्यादा होता है, 80-90 तक पहुंच जाता है। कभी कभी हमारे जो ग्रुप लाइफ है, जो शॉर्ट टर्म बिजनेस है, उसमें भी 80 से 90 तक का होता है रेशो। ये जो 32 के अंदर जो आपको क्लेम्स मिल रहे हैं, इसका जो रेशो है इंश्योरेंस चार्जेस से, वो हार्डली 50-55 है। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड था। अगर आपको मज़ीद भी डिटेल समझनी होगी तो हम मीटिंग के बाद भी आपको बैठ के समझा देंगे कि नहीं ये नहीं सर, कैसे बनती है। आपने अच्छा अच्छा सर ब्रीफ किया। जो है कहते हैं, अच्छा मुझे एक ये क्यूरी थी कि अगर हम इसको नेट, जो मैंने सवाल रेज किया वो सवाल रेज ना होता, अगर हम इसको नेट क्लेम्स और मैच्योरिटी को अगर अलग अलग कॉलम में लिख लेते तो हम्म। क्या ये बेहतर ना होता? तो इससे जी जी। क्लियरिटी आ जाती, और जो है क्या कहते हैं, एक पिक्चर जो है, जो एक लेमैन है उसको भी एक घर पे बैठ के भी जो है कहते हैं, को समझ में आ सकती थी। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये मैंने नोट कर लिया। ये बिल्कुल ठीक है, और ये क्योंकि हमने एनुअल रिपोर्ट से यहाँ पे स्लाइड प्रेजेंट कर दी थी, नेक्स्ट टाइम हम आपकी जो सजेशन है ना, इसके हिसाब से एक और स्लाइड ऐड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। क्लेम्स क्लेम्स को भी अच्छा तोड़ देंगे, प्रीमियम को भी तोड़ देंगे। अच्छा, जैसे आपने सर जो है क्या कहते हैं जलाल साहब, जैसे क्योंकि ये जो सवाल जो मैंने रेज किया, खुदा ना खास्ता आपके ऊपर कोई वो नहीं था, मगर जब हम आलमी तनाजुर में देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अभी हमारे जो नेबर कंट्री है इंडिया, उसके हम्म। अंदर ये स्कैंडल जो है बहुत चले हैं कि वहाँ पर, जिसे मेरे सवाल में मेरे जहन में वो चीज़ थी, तो ये आपने अच्छा हुआ क्लियर कर दिया। क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा था, एक एक रैकेट कह लें या पूरा का पूरा जो है क्या कहते हैं, एक गांव, एक जो है इलाके मखसूस थे, वहाँ से वो इंश्योरेंस क्लेम ले लिया जाता था किसी भी XYZ को। फिर वो जो है बंदा 2-4 साल के बाद मर्डर हो गया, दरिया में डूब के मर गया, या कुछ भी हो गया, फिर उसका क्लेम जो है क्या कहते हैं ले लिया जाता था। फिर जो है क्या कहते हैं, वो एक पूरा एक रैकेट था, अभी भी वो रैकेट चल रहे हैं। तो इस बारे में मुझे थोड़ी सी क्यूरी थी। तो आपका जो है क्या कहते हैं, जैसे ये जैसे जो क्लेम है वो तो बढ़े ही है ना, हम्म। जो 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 आपने कहा मेच्योरिटी को तो अगर हम हटा दें, क्लेम तो बढ़े ही हैं। तो सर हाँ आपके यहाँ तो कोई ऐसा इशू नहीं है, या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा यहाँ रैकेट तो नहीं है जो ये काम करता हो? देखिए, वो मुझे इंडिया वाला केस पता है जो आप कह रहे हैं। वो माइक्रो इंश्योरेंस लेवल पे था कि उनके गांव में सारे एजेंट्स थे। वो छोटी टिकट्स, कलेक्शन ज़्यादा थी लेकिन लो टिकट था। और फिर वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता था या पहले से मरा हुआ होता था। तो ये रैकेट, आई वी नो डैट। हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं है। हम माइक्रो माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं बेचते, या हम जो टर्म लाइफ है
वो हम एजेंट के थ्रू नहीं बेचते। टर्म लाइफ यानी जो शॉर्ट टर्म होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट एलिमेंट नहीं होता, वो हम डायरेक्ट कॉर्पोरेट से बेचते हैं। ठीक है, तो उसमें उसका चांस एक तो कम हो जाता है। हमारी जो सेल्स हैं, ये 98% जो है ना, ये आपकी इन्वेस्टमेंट लिंक प्रोडक्ट, ये सेविंग्स प्रोडक्ट है, जो कि बैंक के ज़रिए और हमारी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए जो रजिस्टर्ड एजेंट हैं हमारे, उसके ज़रिए बिकती है। और इसकी फिर काफ़ी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, कॉल बैक कन्फर्मेशंस हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो इस चीज़ को एलिमिनेट कर देती हैं। जो आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, वो एक माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम होती थी, और ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे पॉलिसी इशू होती थी, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते थे। पॉलिसी विलेज ऑर्गेनाइजेशन की होती थी, मतलब पॉलिसी होल्डर 2 लाख होते थे नीचे जो उनके मेंबर्स होते थे, और फिर वो मेंबर्स की डेथ होती थी और वो विलेज ऑर्गेनाइजेशन को क्लेम जाता था और इस तरह होता था। बट दैट डजंट एग्जिस्ट हियर, फैसल साहब। अच्छा मेघानी साहब, मेरा जो है एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर मैं इंश्योरेंस कंपनियों में जाकर रेस करता हूँ, उनकी एजीएम में। कराची में जो एजीएम होती हैं उनमें तो मैं पहुँचता हूँ। अभी पाक कतर और पाक कतर जनरल तकाफुल और पाक कतर जो है कहते हैं, उधर भी मैं गया था। और रिलायंस इंश्योरेंस की मीटिंग जो बावानी ग्रुप जो हेल्प करते हैं, उनके पास भी ये जाकर मैंने जो है ना पिछले साल भी और इस साल भी रेस किया था। तो सर मैंने उनसे यही क्या कहा कि सर आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, मैं आपके ऊपर कोई खुदा ना खास्ता वो नहीं कर रहा, और यही सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूँ। सर आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो 200 साल 300 साल पुराना मॉडल का जो बिजनेस है वो कर रहे हैं। सर आजकल जो अमेरिका में और पाकिस्तान में भी और बहुत सारे ऐसे मुल्कों में टेलीफोन बैंकिंग पे इंश्योरेंस जो है क्या कहते हैं अपने अकाउंट होल्डरों को दी जाती है, और बहुत सारी जगहों पे मोबाइल कंपनियां एक्टिव हैं। अभी आपको सर अभी एक डील का इलम हुआ होगा। टीपीएल लाइफ जो है उनके जो मेजोरिटी शेयर्स हैं वो मोबिलिंक ने खरीदे हैं। वो इसी वजह से खरीदे हैं कि मोबिलिंक का एक पास बैंक भी है, और उनके पास अपना जो करोड़ों जो है सार्फिन का एक नेटवर्क है। तो वो जो है क्या कहते हैं फ़ोन करके अपना इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं। आजकल तो सर वो जो है कार्ड टाइप का जो है रिफल जो है क्या कहते हैं वो स्क्रैच करें और आप उसको जो है ना क्या कहते हैं अपना नंबर डालें और आप जो है क्या कहते हैं। तो सर ये मॉडल जो आप चला रहे हैं जिसको, वो तो आप सही है। तो सर आप कोई एडवांस या कोई जिद्दत की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास एमसीबी का एक बैकबोन है, मंशा ग्रुप जो है, और जो है क्या कहते हैं इसको बारे में कुछ सोचा है सर आपने? तो थोड़ा सा मुझे आप ब्रीफ करें ना। ये देखें, पहली स्लाइड जो मैंने, शायद आपने देखी हो या ना, आपको शायद कनेक्टिविटी इशू था। ये जो पहली स्लाइड में हमने यही आपको बताया है कि हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लॉन्ग टर्म के और शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के। इसमें जब आप ये आइटम नंबर 2 देखेंगे, तो उसमें यही है, और जिस पे हम काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, वो कैपिटलाइज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स टू कैप्चर डिजिटल स्पेस। ये डिजिटल स्पेस पे हम अपनी मार्केट शेयर बढ़ाना, ये हमारा वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है जिस पे हम काम करें। और इसी तरह तीसरी आइटम देख लें तो वो दोनों लिंक्ड है। प्रोडक्ट इनोवेशन भी हम लाना चाह रहे हैं, बल्कि ले आए हैं हम। मैंने आप ये गुजारिश की थी पहली स्लाइड पे कि डिजिटल स्पेस पे ऑलरेडी 4 प्रोडक्ट इस साल आ जाएंगे, जिस पे जो कस्टमर जर्नी होगा वो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड थ्रू डिजिटल होगा, और हमारी ऐप पे होगा। जो ऐप हमने लॉन्च की है, आजकल आप कैंपेन भी देख रहे होंगे मुल्क भर में, जो हमने जो ऐप लॉन्च की है अपनी आदम जी लाइफ की, कहीं भी और कभी भी वाली जो कि कैंपेन है, इसी पर भी आपको ये 4 डिजिटल प्रोडक्ट्स मिलेंगी। वेबसाइट पे भी मिलेगी, एग्रीगेटर के पास भी मिलेंगे। और जहाँ तक बात है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, जो आप टीपीएल जेस का हवाला दे रहे हैं, वो भी मुमकिन है। वो भी कर सकते हैं। उसमें पाकिस्तान में एक रिस्क ये होता है, जैसे हमने भी एक दफ़ा किया था, और इसको थोड़ा सोच समझ के करना होता है कि जो आप ये बात कर रहे थे ना इंडियन मॉडल की, ये फ़ोन के थ्रू बेचना भी, इसमें भी एक रिस्क होता है। ये भी लो टिकट होती है, और ये प्री, इसमें कोई अंडरराइटिंग इतनी नहीं होती, आपको उसी वक्त बेचना होता है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ना हो, छोटा वॉल्यूम हो,
और सारा बैड बिजनेस लिख लेंगे। यहाँ पे लोग अपॉर्चुनिस्ट है, यू नो दैट, कि वो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। पहले भी जब हमने काम किया था टेल्को से, तो हमारे पास काफ़ी क्लेम्स आए थे जो कि फ्रॉडुलेंट थे, क्योंकि आप अंडरराइटिंग नहीं कर सकते इतने शॉर्ट टाइम के अंदर। फ़ोन से बेचेंगे, आपको बेचना है बस, ठीक है। उसको आप इंतज़ार नहीं करवा सकते कि आप सारे कागजात हैं, हम 10 दिन बाद अंडरराइटिंग करके आपको बताएंगे। तो उसके अंदर फिर आपको बहुत वॉल्यूम चाहिए। तो ये सारी चीज़ का हम जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि सेफ़ क्या है। अगर हमें पार्टनरशिप करनी भी है किसी के साथ, तो हम किसी प्रोडक्ट के साथ इम्बेड कर दें, या टेलीफोन के ज़रिए करें, या वॉट एवर, बट ये हमारी स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे आपकी वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। और प्रोडक्ट इनोवेशन की जहाँ आपने बात की, हम ऑलरेडी एक इंडाउमेंट प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं पिछले महीने, जो कि गारंटीड सम अश्योर्ड है। वो इन्वेस्टमेंट लिंक नहीं है कि आपकी मार्केट परफॉर्म करेगी तो आपको मिलेगा। इसमें गारंटीड सम अश्योर्ड है कि 10-12 साल बाद आपकी मेचोरिटी वैल्यू ये होगी। और उसके ऊपर फिर बोनसेस भी हैं। 10 साल की, अगर 12 साल 15 साल की मिच्योर प्रोडक्ट है तो उस पर मिच्योरिटी बोनस है, 10 साल पे मिच्योरिटी बोनस है। तो वो भी फिक्स्ड है, गारंटीड है। तो ये इनोवेशन हम ले आए हैं। आगे आप देखेंगे, क्योंकि यू आर राइट के ट्रेडिशनल मॉडल पे तो आप आजकल कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई भी बिजनेस। आपने इनोवेट तो करना है कंटिन्यूसली इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड। और डिजिटल स्पेस के बगैर तो आप नहीं चल सकते उसमें। प्रोडक्ट इनोवेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसमें आप देखेंगे इंशाल्लाह कि मार्केट शेयर बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट लिंक के अलावा भी बढ़ेगा, और डिजिटल स्पेस में भी। अच्छा मेघानी साहब, मैं जो अभी मैंने बात करी ना, तो सर जो ये कहते हैं मेरा जो 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 मेरा जो आपका पॉइंट था, जैसे एमसीबी बैंक है, आप ही का हाँ, ग्रुप का बैंक है, हाँ, उनके जो लाखों करोड़ों अकाउंट होल्डर हैं, हाँ। और वो आपके पास कुछ तो जो है रिहाइयों से चल रहे हैं, और हम्म। कुछ ऑपरेट आपके जो है क्या कहते हैं क्लाइंट्स हैं। तो सर इनके इनसे आपकी कोई अलाइनमेंट हो जाए, जैसे आपके पास कोई भी ग्रुप हो, अच्छा ग्रुप हो, आप उनके स्टाफ की जो है इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, उनसे आप बैठ कर मीटिंग करके अपने अकाउंट होल्डरों से जो है, उनके पास तो आपको कोई ऐसी जल्दी नहीं होगी कि भाई वो जो है अभी भी बेच रहा है। जैसे अभी आपने फ़ोन का जो है मुझे अभी जी। आपने ब्रीफ किया, तो जो अकाउंट होल्डर है वो आपके पास दिहाइयों से है और एमसीबी पे इसको ट्रस्ट है। तो जाहिर सी बात है वो जब एमसीबी में उसने जो है दिहाइयों से जो है अपना अकाउंट रखा हुआ है, तो वो अब जो मॉडर्न बैंक हैं या नए यंग जो है जनरेशन के जो बैंक है, उनके पास यंग जो है क्या कहते हैं, तो वो उधर नहीं जा रहा, आप ही के पास जो है टिका हुआ है, और आप ही के बैंक में जो है उसने अपना अकाउंट रखा हुआ, तो जाहिर सी बात है वो लेगेसी को लेकर चल रहा है। तो ऐसे अकाउंट होल्डरों को आप टारगेट क्यों नहीं करते? मेरा कहने का मकसद ये था। फैसल साहब, तो उन्हीं को तो टारगेट कर रहे हैं। ये जो आप एमसीबी से या बैंक एश्योरेंस से जो मैंने जिक्र किया, कि हम बैंका से 82% अपना बिजनेस जनरेट करते हैं, और उसमें मेजर बैंक हमारा एमसीबी है, फिर दूसरे हैं। तो वो अकाउंट होल्डर को ही, वो जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं करते। वहाँ पे हमारे तकरीबन 900 रिप्रेजेंटेटिव्स एम्प्लॉयड हैं बैंक की ब्रांचों में। एक कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन है, कैसे आप बेचेंगे, क्या प्रोसेस होगा। ये सारी जो बिजनेस है वो अकाउंट होल्डरों से ही आ रहा है। कोई बाहर की जनरल पब्लिक नहीं, कि कोई फैसल बैंक का अकाउंट होल्डर एमसीबी में आए और हम भेज दे। ये नहीं हो रहा। हाँ, आपकी बात ये ठीक है कि हम क्रॉस सेल कैसे कर सकते हैं। यानी एक, आपने एमसीबी के अकाउंट होल्डर को एक प्रोडक्ट तो बेच दी, सेविंग प्रोडक्ट बेच दी, इन्वेस्टमेंट लिंक लॉन्ग टर्म बेच दी। अब आप उनको आपकी दूसरी शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट कैसे बेचें। अगर आपकी कोई हेल्थ प्रोडक्ट आती है तो वो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो भी आप उनको पिच कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि आप सारी बैंकों में आप उनके अकाउंट होल्डर को डायरेक्ट पिच नहीं कर सकते। ये एक उनका प्रोटोकॉल है कि वो जो उनके अकाउंट होल्डर हैं उनको वही अप्रोच करेंगे। तो हम पहले बैंक्स को सेल करते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट उनको समझ आती है, तो फिर वो आगे अपने अकाउंट होल्डर को ही पिच करते हैं।
क्रॉस सेल की गुंजाइश मौजूद है। आपने जैसे कहा कि एक बेच दी, अब जैसे इंडोमेंट प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है अकाउंट होल्डर को, तो ये इंडोमेंट प्रोडक्ट भी क्रॉस सेल होगा। जिनको पहले यूनिट लिंक बेचा था जिन अकाउंट होल्डर को, उनकी अगर मेच्योरिटी आ रही है तो मेच्योरिटी के बाद ये इंडोमेंट भी बेच सकते हैं। जो कॉरपोरेट क्लाइंट्स हैं, जो आपने कहा कि ग्रुप लाइफ के कॉरपोरेट क्लाइंट हैं, उनको बिल्कुल पिच होता है। हमारे ग्रुप का प्रोडक्ट इंडिविजुअल लाइफ का भी है कि अगर कोई ग्रुप है हमारा जो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को इंश्योर किया है, तो हम उनके इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को अप्रोच कर सकते हैं और उनको अपनी दूसरी प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, जैसे सेविंग प्रोडक्ट्स हो गई। अभी हम पेंशन स्कीम्स का सोच रहे हैं कि हम पेंशन स्कीम्स को कैसे सेल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज में है हमारी, और जो आप कह रहे हैं अकाउंट होल्डर्स का, वो अकाउंट होल्डर्स ही हैं सारे। अच्छा अच्छा, मेघानी साहब, जैसे अभी आपने अभी लास्ट में अभी ये अपने जो है कहा, जो मेरे सवाल के जवाब में, कि आपका जो बिजनेस है वो 82% बैंक से, एमसीबी बैंक से और इनके अकाउंट होल्डरों से आ रहा है। सर नहीं, मैं सही 82 समझ? 80 नहीं, 82% टोटल बैंक का, यानी इसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं। एमसीबी बैंक भी है, एमसीबी इस्लामिक भी है, फैसल बैंक भी है, हबीब मेट्रोपॉलिटन भी है। इन सब का मिला के 82% बैंक से जनरेट होता है। अब आप कहेंगे प्योरली एमसीबी से कितना होता है, तो वो आप अगर फिगर चाहिए तो तकरीबन 78% आउट ऑफ दिस 82, आप यू आर राइट कि वो एमसीबी से ही होता है। बाकी जो दूसरी बैंकों से होता है वो कम है। यानी यानी कि सर 78% आपके ग्रुप से आ रहा है। बहुत अच्छी बात है सर, जी। मैं अप्रिशिएट करूंगा इसके ऊपर। मगर सर आपको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ अदर बैंक से सिर्फ 4% आ रहा है, जबकि हम्म। बैंकों की जो आप देखेंगे, जैसे मीज़ान बैंक है और बहुत सारे इस्लामिक बैंक है, तो आपका तकाफुल का जो है विंडो भी खुला हुआ है। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि जो है क्या आते हैं, हमें इस जो है क्या एरिया में काम करना चाहिए? और दूसरा दूसरा मैं आपको इसी में ऐड कर दूं कि सर अभी मैं टीपीएल ग्रुप में बैठा हुआ था, तो वहाँ जमील साहब होते हैं, इनके लड़के अली जमील है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अली जमील के साथ इनके दूसरे भाई भी है। मैंने उनकी टीम को उनको ये कहा कि सर आप, मसला सर ये है कि जो कॉर्पोरेट जो बॉडी होती है ना कॉर्पोरेट के, तो सर वो 9 to 5 चलते हैं, वाइट कॉलर और कोट पहन कर। मैं तनकीद नहीं कर रहा सर, ये जो है क्या आते हैं, कोई कोई बुराई नहीं है, अच्छे हम्म। वो, हाँ। मगर कहने का मकसद ये है कि आपको पता है सर, हमारा जो मुल्क है वो ज़रूरी मुल्क है। हम्म। 80% जो है लोग रूरल एरिया में और देहातों में रहते हैं, उसके ऊपर आप तवज्जो नहीं है। बाकी शहरों में आप आ जाएं तो सर जो है क्या कहते हैं, जो कॉर्पोरेट लोग हैं ना वो तो हैं, ठीक है। बाकी जो दुकानदार को आप कहें, आप आड़ती लाहौर में जैसे शालमी मार्केट है, कराची में ये जोड़िया बाजार हो गई, या ये केमिकल मार्केट हो गई, और यहाँ से छांटी लेन, तो सर यहाँ पर सब सब शलवार कुर्ते वाले, और जो है कहते हैं लोग बिल्कुल कैजुअल जो है। तो मैंने उनसे यही कहा सर, ये आपको कोट पैंट उतार कर शलवार कुर्तों में उतरना पड़ेगा फील्ड में, तब तो जो है कहते हैं आप इस तरह करेंगे काम ना, तो काम होगा। बाकी आप कहेंगे जो बस ये 9 to 5 वाला हिसाब किताब रहेगा, और जो है कहते तो सर काम जो है बिजनेस मिलेगा नहीं सर। हाँ, वो आप करते रहेंगे काम, मगर वो एक ग्रोथ नहीं आएगी सर। तो सर आप क्या कहते हैं सर इस बारे में? फैसल साहब, ये जो हमारा मेजर बिजनेस है ना, वो सेकंड टियर सिटीज में ही है। हमारा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का बिजनेस नहीं है इतना। सेकंड टियर सिटीज, थर्ड टियर सिटीज वहीं पे हैं जहाँ एमसीबी की ब्रांचेज हैं, छोटा छोटा प्रोड्यूस करती हैं। बहुत सारी ब्रांचेज हैं केपी के और जो हमारा जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, जिससे 18% बिजनेस आता है, वो उधर 2290 स्टाफ एम्प्लॉयड हैं। इसमें एक्टिव कम होंगे लेकिन रजिस्टर्ड हैं, जिनको वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी गई है, और वो इन्हीं जगहों पे घूमते हैं। ऐसे ही, ऐसे तो नहीं बिजनेस आ सकता फैजल साहब कि लाइफ इंश्योरेंस हम ऑफिस में बैठ जाएं और कोई लाइफ इंश्योरेंस खरीदने आएगा, ये तो नहीं होता।
ये जो 2-2.5 हज़ार हमारा स्टाफ है 68 ब्रांचों में, कराची में तो एक ब्रांच है। और इतना बड़ा सिटी है, सारी ब्रांचेस तो हमारी सेकंड थर्ड टियर सिटीज में है, तो ये सारा स्टाफ वहीं पर है। और लाइकवाइज एमसीबी बैंक की ब्रांचेस भी साउथ में, ये कोई आई चंडीगढ़ रोड या शारा फैसल पे तो नहीं बैंक का प्रोड्यूस करती है, वो तो बहुत कम करती हैं। जो ब्रांचेस नीचे हैं, गुजरात में है, या ये लाड़काना हो गया, या पंजाब साइड पे आप और आगे चले जाएं, ये गुजरांवाला, तो ये यहाँ की प्रोडक्शंस हैं ये सारी। सिटीज से ये गलत फहमी है कि सिटीज से हमें ज़्यादा बिजनेस मिलता है, मेजर सिटीज से, पिशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, यहाँ से नहीं मिलता हमें, कम मिलता है, और ये ज़्यादा वहीं का है। इन टोटल आप देखेंगे तो 900 बंदा एमसीबी ब्रांचेस में, और 2200 बंदा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में, तकरीबन 3000 स्टाफ। ये हमारा यही फील्ड में घूमने वाला है, ये कोई ड्रेस पहन के ये ऑफिस में बैठने वाले लोग नहीं है। और यही मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हार्श वेदर हो या जो भी हो, यही फील्ड में जाके बिजनेस लाते हैं। तो एक तो ये होगा, दूसरे एक करेक्शन में कर दूं, सॉरी, ये 82% बैंक का से जो बिजनेस आता है, उसमें से उस 82 का 80% एमसीबी से आता है। तो अगर आप टोटल में देखेंगे, आप समझ रहे हैं, टोटल में जब देखेंगे तो टोटल का नया बिजनेस 65% एमसीबी से है। बाकी 35%, जैसे 18% एजेंसी से आ गया, और 17% दूसरी बैंकों से है। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने मैथमेटिकल एक समझाना भूल गया था कि 82 का 80%, तो 82 का 80%, 65% एमसीबी से है, आपका 18% वहाँ से है, दूसरी बैंकों से है, और 17% हमारा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है अपनी एजेंसी फोर्स से। अच्छा, लास्ट एक मेरा क्वेश्चन है बिलाल साहब, आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया और तफसील से आपसे बात हो रही है। सर, जैसे हमें पता है कि जब मैं छोटा था ना, तो ये स्टॉक एक्शन आता था, तकरीबन 8 साल की उम्र थी, 6 या पता नहीं 7 साल की उम्र थी, तब से मैं ये देख रहा हूँ। ये जो जिस बिल्डिंग में मैं बैठा हूँ अभी, आदम जी जी जी। हाउस, का नाम आदम जी हाउस हम्म। है। ठीक है, बड़ी अच्छी आपने, आपको मैं ये जो है कहते, ये कहूँगा, आपको मुबारकबाद कहूँगा, और आपको जो है कहते वो कहूँगा कि आपने इस बिल्डिंग की लेगेसी को बरकरार रखा, शुक्रिया। और के अंदर इतना अच्छा रेनोवेशन किया। मैं अंदर यहाँ बैठा हुआ हूँ, और मुझे जो है यहाँ आके अच्छा फील हुआ, यानी कि अच्छा जो है आपने ऑफिस बनाया है। वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। ठीक है, जी। ठीक है सर। वेलकम अच्छा, जी। जैसे कि हमें पता है कि आदम जी जो है वो मेमन ग्रुप थे, मैं भी मेमन बरादरी से हूँ, और आदम जी जो जो ग्रुप था वो, यानी कि मेमनू में कराची की जो है क्या थे, उनकी जो है ना एक, मेमनी में बोलते वट होती थी, वट, शायद जी पंजाबी में भी अल्फाज है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम, जैसे आपने अभी कहा, आपने भी कहा कि हमारी कराची में एक ब्रांच है, वो ब्रांच माशाल्लाह से बहुत बड़ी है। तो सर अच्छा है, इसको आप कंटिन्यू करें। आपको ऐसा नहीं लगता कि कराची, कहने तो 2.5 करोड़ की आबादी है, मगर सर कराची बहुत फैल गया है, और कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि ये 3.5 करोड़ की आबादी है। हम्म। तो सर 3.5 करोड़ की आबादी में आपने, और ये फर्स्ट ईयर सिटी है, यहाँ से जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट और अदर ट्रेडिंग होती हैं, बड़ा होलसेल का काम होता है यहाँ। लोग माशाल्लाह से जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जोरिया बाजार में होते हैं, मगर वो आम से जो है जूते चप्पल में होते हैं, मगर बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ है। कहने का मकसद ये है, इनकी कोई बड़ाई नहीं करनी। आपको नहीं लगता सर ये एक ब्रांच काफी हम्म। नहीं है और होनी चाहिए? हाँ जी। अच्छा, दूसरा जहाँ आप बैठे हैं ना, वो कॉरपोरेट ऑफिस है। मैं जी। जो बात कर रहा था, इसके अलावा एक ब्रांच है जो हमारी शारा फैसल पर है। ठीक है, और उसमें जो स्टाफ है, उनकी आउटरीच है, यानी वो सिर्फ शारा फैसल पे बैठ के काम नहीं करते, वो सिटीज़ के अंदर होते हैं। और मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, पॉलिसी होल्डर लाइफ इंश्योरेंस खरीदने ब्रांच पे नहीं आता, हम बाहर निकल के जाते हैं बेचने। लेकिन बात ठीक है कि बहुत बड़ा शहर है तो एक क्यों है, ये पॉइंट वैलिड है। उसकी रीज़न ये है कि कराची में जो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सेवी हैं, यहाँ से तो वो, नहीं हिला। हेलो, आवाज़ आ रही है हाँ, आपको? जी जी, आ रही है जरा सा आवाज, ठीक आप है। देखें, कराची में लोगों के पास ऑप्शंस वॉइस बहुत ज़्यादा हैं।
यहाँ से वॉइस तो नहीं बंद हुई? हेलो जी हेलो। जी जी। हेलो हेलो। जलाल साहब कुछ चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस अगर उसको एंटरटेन कर लें प्लीज। कौन सा? जहां साहब हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है अरसलान हशमानी साहब से। जी जी चैट पूछिए। जी जी जी। चैट बॉक्स आप देखेंगे, चैट बॉक्स में आपके पास आ रहा मेरे पास चैट बॉक्स में कहाँ देखें, कहाँ देख सकता हूँ मैं बेटा? है। ये चैट बॉक्स को आप करेंगे ना तो इसमें क्वेश्चन है, इसमें हेलो। जी जी। ये जो एक ही सवाल है मेरे पास चैट पे अरसलान हाशमी से। जी हशमानी साहब से। हाँ, आशवानी साहब से एक ही सवाल है। जी बिल्कुल, इस पर ओके। कैन यू स्पीक ऑन द Q1 26 रिजल्ट्स, स्पेसिफिकली लोअर प्रीमियम रेवेन्यू, हायर claims, positive reversal of expenses, change in insurance liability, assumptions of long-term interest rate used in Q1 relative to used in Q1 26, Q1 के रिजल्ट निकाल रहे थे। अच्छा अरसलान साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अच्छा ठीक है। हाँ, वैसे तो हम ये ईयर एंड का कर रहे थे कॉर्पोरेट ब्रीफ। Q1 पे अगर आपका ये सवाल है तो पहला है कि लोअर आपका जो प्रीमियम है, मैं जस्ट होल्ड ऑन जी, emergency distribution। इसमें जो मेजर जो डिक्रीज आया है वो सिंगल प्रीमियम बिजनेस में आया है। अगर आप रेगुलर प्रीमियम बैंका में देखें तो इसका जो ब्रेकडाउन आपके पास नहीं होगा, लेकिन मैं आपका सवाल है बता देता हूँ कि वहाँ पे मोर और लेस को उसी लेवल पर है बैंक का बिजनेस जो लास्ट ईयर था मार्च के अंदर, 624 और 627। जो हमारी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 7% का ग्रोथ है। 124 मिलियन 25 का था और 132 हमारा 26 का है। और जो फर्क है वो असल में सिंगल प्रीमियम बिजनेस का है, जो कि लास्ट मार्च में 5.9 बिलियन था, जो अब 4.6 बिलियन है। 1.3 बिलियन का 23% का सिंगल प्रीमियम का डिक्लाइन है। अच्छा, जी अब जो एक तो ये है कि फर्स्ट क्वार्टर इज नेवर बीन अ वेरी गुड बेंचमार्क या यार्ड स्टिक कि हमारा पूरा साल कैसे जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो फर्स्ट क्वार्टर की एक्टिविटी लास्ट ईयर थी और वो क्या थी और अब क्या है। लास्ट ईयर, इस साल जो फर्स्ट क्वार्टर होता है मोस्टली इट्स अ प्लानिंग क्वार्टर। उसमें बहुत सारी वैलिडेशंस होती हैं, जो हमारे जो सेल्स फोर्स होती हैं उनकी एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस भी होती है, कन्वेंशंस होती हैं। तो उसके टाइम्स में टाइमिंग डिफरेंस भी होता है, लास्ट टाइम कब हुई थी अब कब हुई थी। इस दफ़ा थोड़ी जल्दी हुई है, तो वो प्लानिंग सेशन भी थोड़ा लंबा गया था। दूसरा जो मेजर फैक्टर जो सिंगल प्रीमियम का मैं बता रहा था, उसकी वजह यह है कि पिछले साल इंटरेस्ट रेट्स था जनवरी मार्च में 14-15% था 2025 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आमिर मेरे पास यहाँ इन्वेस्टमेंट से बैठे हुए हैं। आप भी अगर किसी इन्वेस्टमेंट हाउस से हैं तो देख लीजिएगा। उसके हम्म। मुकाबले इस क्वार्टर में वो 4% डाउन है इंटरेस्ट। तो सिंगल प्रीमियम जो है ना, ये मोस्टली इन्वेस्टमेंट हाई टिकट और इन्वेस्टमेंट सेवी पीपल बाय दैट। इसमें इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस रिस्क फैक्टर भी होता है, बट इसके अंदर शॉर्ट मैच्योरिटी होती है। तो लोग ये देखते हैं कि 2 से 3 साल में व्हाट शुड बी माय इलस्ट्रेटिव मैच्योरिटी वैल्यूज। तो क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट इस क्वार्टर में 3-4% डाउन था, तो इसकी हमें स्ट्रेटजाइज अब करना है कि अब हमें सिंगल प्रीमियम को कैसे स्ट्रेटजाइज करना है, इसकी सेल्स पिच क्या होनी चाहिए,
क्या हमें इक्विटी में पिच करना है, क्योंकि नॉर्मली वी डोंट बाय डिफॉल्ट पिच फॉर द इक्विटी प्रोडक्ट्स, इक्विटी फंड जो है हमारा। तो ये तो थोड़ा एडजस्टमेंट्स आई हैं पहले क्वार्टर में ड्यू टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशिएशन सिंगल प्रीमियम की सेल्स में। क्लेम्स अगेन आपकी, मैं देख लेता हूँ। जी अगेन इसमें जो मेचोरिटी वैल्यूज़ हैं वो 3.7 बिलियन 5.7, ये अगेन वही फैक्टर है कि जो सिंगल प्रीमियम 2-3 साल पहले बेचा था उसकी जो ईयर एंड पे उसकी मेचोरिटीज़ ये फर्स्ट क्वार्टर में गिर रही है। पूरे साल में जो होता है ज़ाहिर है एट द सेम टाइम तो वो आता नहीं है क्लेम करने, तो ये सारी मेचोरिटीज़ बुक हुई हैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। पॉजिटिव रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस, ये टेक्निकल रिजर्व रिलीज हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि आपकी जो एक सिंगल प्रीमियम की जो मेचोरिटीज़ हैं वो बहुत आ गई है, तो वहाँ से वो टेक्निकल रिजर्व्स रिलीज हो गया है। एंड आपकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो 113% डाउन हुई है। टू देयर वाज अ लॉस ऑन द इन्वेस्टमेंट इनकम इन द फर्स्ट क्वार्टर ड्यू टू इक्विटी लॉसेस एंड ये जो मार्क टू मार्केट इंटरेस्ट रेट यील्ड्स कुछ ऊपर हुई थी फर्स्ट क्वार्टर में। आपको पता है ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से पीकेआरबी रेट्स ऊपर चले गए थे, और हमने कुछ पोजीशंस ली हुई थी पिछले साल जब इंटरेस्ट रेट आपके 10.5 या 9.5 के लगभग थे। तो वो जो मार्क टू मार्केट लॉसेस हैं वो भी फर्स्ट क्वार्टर में बुक हुए हैं। एंड यू वेल नो कि ये जैसे जैसे ये अनवाइंड होगा, ये हम होल्डिंग पीरियड बढ़ता जाएगा, ये अनवाइंड हो जाएगा। ये जो लॉस है ये बुक करना पड़ता है हमें, क्योंकि मार्क टू मार्केट लॉसेस हुए हैं। तो ये 113% से गिरा है इन्वेस्टमेंट इनकम। और ये क्योंकि इन्वेस्टमेंट लिंक्ड है, पॉलिसी होल्डर लिंक्ड इन्वेस्टमेंट है, तो इसकी कैश वैल्यू रिजर्व्स भी इसके लाइकवाइज कम हुए हैं। और ये अजम्पशंस ऑफ द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट यूज्ड, ये सवाल मेरी समझ नहीं आया कि कौन से अजम्पशंस की बात कर रहे हैं आप जो इंश्योरेंस लायबिलिटीज को उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू ले रहे होंगे उसको डिस्काउंट कर रहे होंगे, तो एक्चुरियल। प्रीवियसली बिकॉज इंटरेस्ट रेट ज्यादा थे तो उसकी, और अब इंटरेस्ट रेट्स रिलेटिवली लोअर हैं, तो उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट है ये जो इंश्योरेंस लायबिलिटी पॉजिटिव हुई है या रिलीज हुआ है, टेक्निकल रिलीज जो हुआ है? एक तो मैच्योरिंग का फैक्टर हो गया और दूसरा इंटरेस्ट रेट्स का भी कुछ फैक्टर होगा। हम्म हम्म देखें, कैश वैल्यूज तो जितनी कैश वैल्यूज होती हैं वो रिजर्व्स में आ जाती हैं। उसके अंदर डिस्काउंटिंग नहीं होती। तो जो कैश वैल्यूज हैं एज ऑफ March 31 और जो कैश वैल्यूज थी दिसंबर में जो डिक्रीज हुई होंगी, तो उसकी वजह से वो रिलीज हो गया कैश वैल्यू रिजर्व्स। जो आप हम्म। टेक्निकल रिजर्व्स की बात कर रहे हैं ना, जो कि मोर्टेलिटी रिजर्व्स और इंश्योरेंस रिस्क रिजर्व्स और IBNR और लॉयल्टी बोनसेस जो कि फ्यूचर के हैं, उसकी जो डिस्काउंटिंग है ना वो लॉ में 3.5% ही अलाउड है एक्चुअरीज को। यानी इतनी स्ट्रिक्ट है कि वो 3.5% से ज़्यादा डिस्काउंट रेट ले नहीं सकते उसको। अच्छा। वो बहुत कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, तो ये नहीं होता कि हम उसको PIB के 10 साल के PIB से डिस्काउंट कर दें, 13% से कर दें। नो, दैट इज़ जो सॉल्वेंसी रेगुलेशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं स्टेट लाइफ की, वो 3.5% से वो डिस्काउंट होती हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी। अरसलान। जी शुक्रिया सर। अगर इफ वी हैव एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर पार्टिसिपेंट, तो फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस। अगर कोई और सवाल है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ सब currently we don't have any other question, so we will conclude this corporate briefing session with a vote of thanks to all the participants, whether they are in the capacity of shareholders, analysts, or investors. So further, we will also like to brief our participant that recording of this corporate briefing session as required under 5.7 A.3 clause E of BSX rulebook will be uploaded on the official website of the company
for the general public information and the general public consideration, and also will be announced through POCARS within 2 working days of holding of CBS. So we would like to conclude this CBS session with vote of thanks to all the participants here. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Very interesting. Thank you.